Deep Water, author William Orville Douglas. Let's talk about the author. William Orville Douglas was born on 1898 and died on 1980. He was born in USA. Douglas was a leading advocate of individual rights. He was a judge at the Supreme Court of USA, retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. Difficult word of this chapter: YMCA, Young Men's Christian Association. Yakima, a place in Washington, USA. Treacherous, dangerous, drop slope from the shallow area to the deep area. Water wings, a pair of inflatable waterproof bags designed so that one can be attached to each arm, especially of a child learning to swim. Skinny, thin, subdued, to overcome. Pride, self-respect, aversion, dislike. Surf, wave of the sea. Knocked me down, threw him down. Revived, brought back to mind. To feel at ease, to feel comfortable. Bruiser, a person who is tough and aggressive and enjoys a fight or argument. Spaceman, example: summoned, gathered, spring, push, bob, jump. Suffocating, unable to breathe due to lack of air. Yell, scream. Skinny, a thin person. Ducked, push or plunge someone underwater. Expanding, losing or giving out. Ached, pained, throbbed, felt pain in a series of beats. Dizzy, faint, unsteady. Strategy, plan of action. Strike out, extend. Thrash, hit with force. Stark, serve, seized, gripped. Shrieking, screaming. Paralyzed, incapable of movement. Pounding, repeated beating. Oblivion, the state of being unaware or unconscious of what is happening around one. Curtain of life fell, life came to an end. So these were your word meanings. Now we will going to talk about summary of the chapter. This story has been taken from the author's autobiography of Men and Mountains. ये जो स्टोरी है ये ऑथर की बायोग्राफी से ली गई है जिसका नाम है Of Men and Mountains. In this piece, he tells about his fear of water and how he conquered it by determination and willpower. इस पे ऑथर बात करता है किस तरीके से वह अपने फियर को कंक्योर्ड करता है, अपनी दृढ़ शक्ति से, अपनी विल पावर से किस तरीके से उससे बाहर निकलता है. As a child, when he was 3 or 4 years old, he would go to the beach in California with his father. जब ऑथर 3 या 4 साल के थे तब वह अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए. He would get scared by the might of the huge waves which swept over him and it instilled a fear in his subconscious mind. तो जब वह अपने फादर के साथ बीच पर गए थे तो उसी टाइम पे सडनली एक वेव आई थी, एक बड़ी सी लहर आई थी और जो उनके सर के ऊपर से होते हुए निकल गई थी और उस घटना ने ऑथर के माइंड पे एक डर पैदा कर दिया, एक सबकॉन्शियस माइंड पे एक डर पैदा कर दिया जिससे कि वह उससे बहुत ज्यादा डर गए. ये तो अच्छा हुआ जो वो लहर आई थी वो किनारे की तरफ आई थी, समुद्र की तरफ नहीं गई थी, नहीं तो हो सकता था कि ऑथर जो है वो समुद्र में बह जाते या डूब जाते. ठीक है, तो ये उनके दिमाग पे एक घर कर गया, उनके दिमाग पे इस चीज का डर बैठ गया. William Douglas was 10 or 11 years old when he decided to swim. विलियम डगलस लगभग 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया. The YMCA pool was safe for swimming. जो YMCA pool था वो सेफ था स्विमिंग करने के लिए. It was only 2 to 3 feet deep at the shallow end and 9 feet at the deep end. ये जो पूल था वो 2 से 3 फीट
बिगनिंग में जहाँ से वो स्विमिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो शैलो पॉइंट से वो लगभग 2 या 3 फीट डीप था, और जहाँ पे एंड पॉइंट था उसका वहाँ पे 9 फीट डीप था. द नरेटर हैड एन अवर्जन इन गोइंग इन वाटर. इट स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 or 4 years old. अब नरेटर के दिमाग में एक डर बैठा हुआ था जैसे वह पानी में जाता है या पानी को देखता है, और यह लगभग 3 या 4 साल के जब नरेटर थे तब से उनके दिमाग में बैठा हुआ है. ही स्टूड विथ हिज फादर इन द सर्फ व्हेन द वेव्स स्वेप्ट ओवर हिम. और ये कब की बात है, जैसे कि मैंने बताया कि जब वह 3 या 4 साल के थे अपने फादर के साथ गए थे बीच पर, तो वहीं पर वो खड़े थे. ही वॉज ऑलमोस्ट बेरिड इन वाटर. तो क्या हुआ था कि एक वेव आई थी और उनको उनके सर के ऊपर से निकल गई थी, उनको डुबो करके लगभग निकल गई थी, जिससे कि उनके दिमाग में एक डर बैठ गया था. ही डेवलप्ड अ फियर फॉर द ह्यूज वेव्स. अब बड़ी लहरों को देख करके या पानी की लहरों को देख करके उनके मन में डर आ जाता है. ही वेंट टू द YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग. अब वह YMCA पूल गए हैं स्विमिंग को सीखने के लिए. तो जैसे वह स्विमिंग सीख रहे होते हैं या स्विमिंग के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तभी उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि फिर से जो उनका डर था वो उनके सामने आ जाता है. वो घटना क्या, देख लेते हैं. अ बिग बली बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल. एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर लड़का आता है, उनको उठाता है और पानी में फेंक देता है, पटक देता है. ही वॉज फ्राइटेंडेड एंड फाउंड हिमसेल्फ एट द बॉटम. वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने आप को जब उन्हें होश आता है, या ऐसा कह सकते हैं जब तक वो कुछ समझ पाते, वो बॉटम में पहुंच जाते हैं. ही ग्रीव पैनिकली, ही वॉज सफोकेटिंग, ही ट्राइड टू क्राई, ही हैड लॉस्ट हिज ब्रेथ एंड वेंट डाउन एंडलेसली. क्या था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैनिक रिएक्ट किया, वह सफोकेट होने लगे, उनका दम घुटने लगा, वह चिल्लाने लगे, रोने लगे, और लगभग एक कंडीशन ऐसी आ गई कि उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा. हिज हार्ट वॉज पाउंडिंग, ही वॉज पैरालाइज्ड. उनका हार्ट जो था वह बहुत ज़्यादा पाउंड कर रहा था. ही वॉज पैरालाइज्ड, वह लगभग पैरालाइज हो चुके थे. ही जम्प्ड विथ ऑल हिज फोर्स बट इन वेन, ऑल एफर्ट्स एंडेड, ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस. अभी क्या हुआ कि जैसे उस बिग बली बॉय ने राइटर को टॉस किया, राइटर को स्विमिंग पूल पे फेंका, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने एक प्लान बनाया कि जब वह स्विमिंग पूल में जाएंगे, जब वह नीचे बॉटम पे पहुंचेंगे, तो बहुत तेजी के साथ अपने पैरों से फोर्स करेंगे बॉटम को, और फिर से उछल करके वो क्या करेंगे, वापस पानी के ऊपर आ जाएंगे. बट ऐसा नहीं हुआ. इट वॉज नॉट लाइक दैट, और वह बेहोश हो गए. When he came to consciousness, he found him lying on his stomach in the edge of the pool. जब उन्हें थोड़ा सा होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पोल के स्विमिंग पूल के ही किनारे लेटे हुए हैं, पेट के बल. For days a fear of water haunted him. The fear stayed with him for years. अब एक बार और उनके साथ यह डर दोहरा दिया गया, यह डर उनके पास एक बार और आ गया, और सालों तक वह पानी के पास नहीं गए, स्विमिंग करने के लिए नहीं गए. फाइनली ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. और काफ़ी सालों बाद उनको एक इंस्ट्रक्टर मिला, और इसके बाद फिर से उन्होंने स्विमिंग सीखना शुरू किया, स्विमिंग सीखने के बारे में सोचा. द इंस्ट्रक्टर अटैच्ड अ रोप टू द नरेटर्स बेल्ट. जो इंस्ट्रक्टर था, जो सिखाने वाला था, उसने एक रोप नरेटर के बेल्ट से बांध दी. द रोप वेंट थ्रू अ पुली, ही हेल्ड इट टू द एंड ऑफ द रोप एंड इट वेंट बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन इन द पूल. अब क्या था कि रोप काफ़ी लंबी थी, काफ़ी पुली थी, जिसकी वजह से वह एंड तक जा सकते थे स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग ठीक तरीके से सीख सकते थे. अब जितनी ही रोप छोड़नी होती थी, इंस्ट्रक्टर जो थे उतनी ही रोप छोड़ते थे, और उस तरीके से उनको स्विमिंग सिखाने की कोशिश कर रहे थे. द इंस्ट्रक्टर taught him to put his face under water and exhale. अब इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि अपना फेस पानी के अंदर डालो और एक्सेल करने की कोशिश करो. He also taught him to raise his nose and inhale. और उन्होंने ये भी बोला कि अपनी नोज को अंदर करो और फिर इनहेल करने की कोशिश करो. Finally he became a complete swimmer. काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस के बाद वह एक पूरे स्विमर बन गए, एक अच्छे स्विमर बन गए. But he still feared when he was alone in pool. He was still not satisfied. इंस्ट्रक्टर ने बोला, भाई अब तुमने स्विमिंग सीख ली है, अब सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, लेकिन नरेटर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है. जो राइटर हैं वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी भी उनको अकेले स्विमिंग करने में डर लगता है. अगर वह कहीं पर अकेले होते हैं और स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको डर लगता है. वंस ही डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट
ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम टू माइल्स अक्रॉस द लेक। अब एक बार क्या हुआ कि वह एक आइलैंड पे गए, ट्रिक्स आइलैंड पर गए, स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और उस लेक पे लगभग 2 मील तक उन्होंने स्विमिंग की। ही फेस्ड इट sarcastically, thinking that now as he knew how to swim, what harm could it do to him? He challenged his fear in the face of it, and finally it would vanish. It was a baseless fear instilled in his. अब ये जो था कि अब उन्होंने अपने फियर को चैलेंज किया। उन्होंने जब वो दो माइल की स्विमिंग कर चुके तो इसके बाद वह खड़े हुए उन्होंने चिल्लाया और बोला कि मैंने अपने फियर को फेस किया है, मैं उससे कन्क्योर्ड हुआ हूँ। इट वुड वैनिश, या वैनिश हो चुका है। इट वॉज अ बेसलेस फियर इंस्टिल्ड इन हिज, यह बेसलेस फियर था, सबकॉन्शियस माइंड, उनके दिमाग में जो भर गया था, इसका कोई मतलब नहीं था। दिस एक्सपीरियंस वॉज वैल्यूएबल फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था राइटर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था। ही हैड एक्सपीरियंस टेरर एंड डेथ, ही ओवरकम इट एंड फाइनली कंक्योर्ड इट। उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस डर को, उस मृत्यु के डर को, उन्होंने लगभग मौत को भी एक्सपीरियंस किया। ही ओवरकम इट एंड फाइनली कंक्योर्ड इट, वह इससे बाहर आए और अपने आप को अच्छा साबित किया। विलियम रियलाइज्ड दैट डेथ इज पीसफुल एंड इट इज द फियर ऑफ डेथ दैट इज टेरराइजिंग। विलियम ने बोला कि जो डेथ है वो बहुत शांतिपूर्ण होती है, लेकिन जो इसका डर है वह लोगों को आतंकित रखता है। लोग मरने से डरते हैं, ठीक है, लोग नहीं चाहते कि वह मर जाएं, तो यह डर है जो उनको आतंकित रखता है। वरना विलियम के हिसाब से, विलियम के अकॉर्डिंग जो डेथ है वो बहुत पीसफुल है। हिज विल टू लाइफ ग्रीव इंटेंसली एज ही हैड ओवरकम हिज फियर एंड स्टार्टेड लिविंग फियरलेसली। अब यह एक ऐसी सिचुएशन थी कि यहाँ पर विलियम ने अपने आप को डर से दूर रख करके जीना सीखा, फियरलेसली जीना सीखा, और अपने जीवन को एक अच्छा आयाम दिया और बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाया बिना किसी डर के। फाइनली ही वॉज एबल टू कन्क्योर हिज फियर ऑफ वाटर, और फाइनली उन्होंने अपने पानी से जो डर लगता था उनको, उससे वह बाहर निकले और अपने आप को एक योग्य स्विमर में परिवर्तित किया। सो दिस वॉज योर स्टोरी ऑफ द चैप्टर। आई होप यू गॉट द चैप्टर। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।